Hello friends, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way. Before this starting this lecture, please subscribe my channel and like and comment the video. Today I will discuss about the types of chemical reaction. So basically in class 10th there are the 5 types of chemical reaction occur. And the name of that chemical reaction is number 1 combination reaction. Number 2 decomposition reaction. Number 3 displacement reaction. Number 4 double displacement reaction. And number 5 oxidation and reduction reaction. And number 6 is redox reaction. Means the redox reaction is actually the combination of oxidation and reduction reaction. So let me start one by one. What is the combination reaction? The combination reaction is those chemical reactions in which 2 or more than 2 substances are combined to each other and form only one substance. Means combine का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोई चीज का जुड़ना, add. So those chemical reaction in which 2 are more than 2 substances combine to each other and form a new substance. मीन 2 चीज मिलकर के 2 या 2 से ज्यादा चीज मिलकर केवल एक चीज का फॉर्मेशन करेंगे. इफ वी सी द एग्जांपल magnesium plus oxygen gives out magnesium oxide. Balance this reaction. Here 2 oxygen and 2. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो 2 चीजें आपस में मिलकर के एक चीज बनाएं. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है एडिशन रिएक्शन. मीन चीजें ऐड हो रही हैं. और एग्जांपल देखिए, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाए then they make the water. तो यहां भी आप देख रहे हो कि 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं. So this type of reaction is called combination reaction. Combination reaction. Now the next example, carbon plus oxygen combine and form कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स 2 चीजें मिलकर के फिर से एक चीज बनाए. तो मतलब दिस इज द बेसिकली combination reaction in which 2 or more than 2 substances combine with each other and make only one substance. This type of reaction is called combination reaction. Now the next types of reaction is the
decomposition reaction. Second is the decomposition reaction. डिकम्पोज का मतलब होना ब्रेक होना, टूटना. डिकम्पोज मीन्स टू ब्रेक, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज ब्रेक होगा, कोई चीज टूटेगा. दोज केमिकल रिएक्शन in which a substance decomposes or break into two or more than two substances. Means कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें मिलकर के एक चीज बना रहे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा चीज बना रहे. मतलब हो रहा हो ये दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मींस दिस इज अपोजिट और antagonistic. Antagonistic means opposite reaction. This is the opposite or antagonistic reaction from combination reaction. एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर, तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और एक कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहां पर आपने देखा एक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है दो चीजों, जबकि इसके पहले वाले रिएक्शन में आपने देखा था टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड मेक ओनली वन कंपाउंड, बट हियर वन सब्सटेंस इज ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड्स. So this is the examples of decomposition reaction. Basically, the decomposition reaction is various types. Example number 1, thermal decomposition reaction. Thermals means heat. अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मींस दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन which take place in presence of heat is called thermal decomposition reaction. जैसे अभी इसके पहले आपने एग्जांपल देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया तो ये ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज बाय सप्लाइंग द हीट, so this is called thermal decomposition reaction. Now the second light decomposition reaction means those decomposition which takes place in presence of light, in sunlight. sunlight के प्रेजेंस में अगर decomposition reaction हो, वैसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? light decomposition reaction. जैसे एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड तो अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में हीट सप्लाई कर दोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो ब्रेक हो जाएंगे सिल्वर और ब्रोमाइड. सिमिलरली AgCl फिर से सनलाइट के प्रेजेंस कर दो, फिर से ब्रेक हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन. सो दिस इज द लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ द थर्ड टाइप इज द
electrolysis decomposition reaction. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मींस those decomposition reaction which takes place in presence of electricity के प्रेजेंस में। जैसे अगर हम वाटर ले लें, वाटर में सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। So this is called electrolytic decomposition reaction. Decomposition reaction में हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं, हीट किसी सब्सटेंस को दे रहे हैं, और आप जानते हैं अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। So basically decomposition reaction is endothermic reaction because in this case the heat supplied to the substance, means this is endothermic reaction. Endothermic reaction क्योंकि हम हीट सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं। So this is the basic examples of the decomposition reaction. Now the third type of reaction is displacement reaction. डिस्प्लेस मीन्स किसी चीज को हटा देना, मतलब पोजीशन से हटा देना। टू डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन मीन्स दोज केमिकल रिएक्शन इन विच a substance displays those chemical reaction in which substance take the place of another substance, means एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस की पोजीशन पर पहुंच जाए। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे जिंक की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दें तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और हाइड्रोजन के पोजीशन पर जाकर के बैठ जाता है। मतलब those chemical reactions in which the substance take the place of another substance, zinc take the place of hydrogen, so the reaction should be ZnSO4 plus H2। अगर और एक रिएक्शन देखें, जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन करवा दे कॉपर सल्फेट के साथ, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा MgSO4 प्लस कॉपर। फिर और एग्जांपल देखिए, जैसे जिंक रिएक्शन अगर हम करवा दें FeSO4 के साथ तो बनेगा ZnSO4 प्लस Fe आयरन। So this is the displacement reaction, and in the next lecture we will discuss about the double displacement reaction and oxidation reduction reaction and redox reaction. So please watch my video and please subscribe my channel and comment, go to comment section box and comment it
एंड इफ दिस वीडियो इज यूजफुल, अगर आप सबको लग रहा है कि ये वीडियो यूजफुल है, आप घर में रह के लॉकडाउन का अच्छा सा यूज कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर करिए, ताकि जो घर में रहकर स्टडी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और अपने फेसबुक पे भी शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और चीज़ों को समझ सकें। और हमारा पर्पस यही है कि लॉकडाउन में आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें, आपकी पढ़ाई एक व्यवस्थित ढंग से चलती रहे। और इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।